नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम फाइनेंशियल टाइम टेबल जो डब्ल्यू गान ने 1909 में बनाया था उसको हम जरा प्लैनेट्स के साथ में जोडियाक साइंस के साथ में कैसे एसोसिएट होते हैं वो देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फिर से वही साइकिल है, नॉर्थ नोड का और साउथ नोड का। यहाँ पे हमने उसको प्लैनेट्स के साथ में एसोसिएट करते हुए जोडियाक साइन के साथ में एसोसिएट करके डाला हुआ है। तो ये एक स्पेसिफिक बिजनेस साइकिल बन जाता है। फिर वहाँ पे फाइनेंशियल टाइम टेबल था, तो ये उसी तरह से एक बिजनेस साइकिल ओवरऑल बन जाता है और इसी बिजनेस साइकिल को मोस्टली फॉलो किया जाता है। तो चलिए इसको विस्तार में थोड़ा डिटेल में चेक करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो ज़ोडिएक साइंस होता है ओवरऑल, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा। हमने स्पेशली एरीज, कैप्रिकॉन, लिब्रा और कैंसर ये चारों मार्क करके रखा है और उसी हिसाब से आपको बाकी के साइंस भी दिखाई देंगे। तो जब भी ये एक स्पेसिफिक पार्ट से पास होता है तो आपको उसके अंदर चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल, आप अगर यहाँ पे चेक करो तो यस, ये यहाँ पे नॉर्मल है। तो नॉर्मल से आप साइकिल्स की ट्रेंड चेंज करते हुए दिखाई देते हुए पता चलेगा। फाइन। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में एक एक करके चेक करते हैं, आइए। तो यहाँ पे हमको दो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहनी चाहिए। वो है सबसे पहले नॉर्थ नोड और साउथ नोड का जो साइकिल्स होता है वो, और उसके साथ में सेकेंडरी प्लैनेट फैक्टर्स जो होता है उनका इम्पैक्ट क्या होता है क्या नहीं, वो भी चेक करेंगे। तो जस्ट ये थोड़ा शॉर्ट नोट में पढ़ लेता हूँ एक बार। The ecliptic is the sun's path. A planet crossing this path moves from south latitude to north latitude and from north latitude to south latitude. The word node is the name for the points in the orbit of the planet where it crosses the ecliptic or sun's path. The point where it crosses from south to north is the north node, and the point where it crosses from the north to the south is called the south node. तो ये हमने ऑलरेडी पहले चेक किया हुआ था स्पेशली। The moon's nodes have a cycle of 19 years. That is, it takes them 19 years to pass through the 12 signs of the zodiac. The trend of the business volume curve has been found to correspond to the cycle of the north node. In this theory, the transit of the north node forms the basic trend of business activity and volume. Secondary planet factors can distort this curve 10 to 20% above or below the normal line, depending upon the nature of the planets and the angles formed. Business cycles as portrayed on chart, The Century of Business Progress by Colonel Leonard is used on a comparative basis with the transit of the north node portraying the major trend of business volumes and activity। देखिए, इसके वजह से कहा जाता है कि आप बिजनेस साइकिल्स के हिसाब से ऑलरेडी एक ट्रेंड पहचान सकते हो और आपको एडवांस में पता चल सकता है कभी क्या इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि डब्ल्यू गार ने जैसे कहा था ये साइक्लिक चीजें होती है और आपको ये एडवांस में सब चीजें पता हो सकती है। Planetary aspects or angles to the north node and to each other form the secondary trend। तो ये secondary trend जो होता है वो भी important है हमको समझना। Whenever the north node passes through Scorpio and Libra, the north node moves backward through the zodiac। ये हमको समझना जरूरी है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। Business goes through an approximate 3 years transition period. If there are no favorable secondary factors present to distort the business activity cycle, business volumes is going from normal to above normal, creating a prosperity period or the beginning of a bull market in stock prices as well as other forms of business। तो ये स्पेशली हमको यहाँ पे जोडियाक साइंस मिल गई है, स्कॉर्पियो और लिब्रा, जिसके वजह से हमको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। Whenever the north node reaches the sign of Leo, business volume is normally at a high point। अभी लियो का बहुत इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि सन जब भी लियो में होता है तो उसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है।
If there are no secondary factors present of an unfavorable nature to distort the curve, as the North Node passes through Cancer and Gemini, business volume is above normal, but the trend is slowly towards normal. तो ये above normal से धीरे धीरे normal की तरफ होता है. Favorable secondary factors can prolong this prosperity period beyond the allotted time, and unfavorable secondary factors can decrease the length of the favorable period. Whenever the North Node moves into Taurus, a transition period begins which lasts through the sign of Aries. एरीज टॉरस के पहले आता है, बट बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो टॉरस और फिर एरीज आएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 3 पीरियड्स. तो यहाँ पे पीरियड्स भी दे दिया है, यहाँ पे कौन से जोडियाक साइंस एसोसिएटेड है वो भी दे दिया. This is a warning that the normal position of the business volume has been reached and that the trend of business activity is slowly going from normal to below normal for the next 3 or 4 years. तो ये भी उन्होंने खास करके दे दिया है. In 1929, the North Node was in Taurus and had been there since December 1928, giving the warning 6 to 8 months in advance that the bull market boom was nearing its end. तो जैसे यहाँ पे हमको अपसाइड में डिटेल्स बताया है टॉरस के बारे में, और टॉरस से जब ये एरएस में जाता है तो उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और एक पीक उसका ऑलरेडी खत्म हो जाता है वो टाइम पीरियड पे. तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप साइकिल्स के हिसाब से चेक करो तो 1929 में दिसंबर 1928 से ऑलरेडी ये डिटेल्स पता था कि यस ये साइकिल कंप्लीशन पे है, गिविंग द वार्निंग 6 to 8 months in advance that the bull market boom was nearing its end. Jupiter was in Taurus in conjunction with North Node in May and June of 1929, a favorable secondary factor which sent the business curve upward 6 points from June. तो ये जून 1929 की बात हो रही है. However, when this aspect passed, the curve dropped and remained below normal for 4 years until the North Node passed out of the sign Aquarius, which is the sign on the low point of the business cycle chart. According to this theory, all these factors were predictable in advance years ahead of the actual happening. तो देखिए, अगर हम चेक करते हैं तो ओवरऑल हमको एक साइकिल पता चलता है कि जो नॉर्थ नोड है उसका मूवमेंट धीरे धीरे कहाँ से कहाँ तक होता है, कौन से साइंस के थ्रू अगर वो पास होता है तो वो टाइम पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये हमको पता चलता है. और ऑफ कोर्स ये साइकिल्स है तो साइकिल्स मोस्टली रिपीट होते रहती है, और इसी तरह डब्ल्यू गान अपने प्रेडिक्शंस हमको बताते थे, और उन्होंने ऑलरेडी बोल के रखा है कि यस ये साइकिल से ये रिपीट होते रहेगी. उसका इम्पैक्ट क्या है, रीजन क्या है, बैकग्राउंड क्या है वो हमको बता के नहीं रखा है, बट यस अगर आप स्टडी करोगे तो आपको स्टडी करने के लिए मटेरियल तो अच्छा खासा है. ये किताब में से लिया हुआ है, और ये किताब के बारे में हमने बताया नहीं है, बट इसके जो ऑथर है ये हमने ऑलरेडी डब्ल्यू गान की एक लिस्ट दी हुई है, तो लिस्ट में ऑलरेडी ये ऑथर प्रेजेंट है. तो कोई अगर ये ऑथर के बारे में हमको स्पेशली बताता है तो शायद हमको, तो हम उनके साथ में ये बुक शेयर करेंगे ताकि वो और डिटेल्स में जा सके. देखिए समझ लीजिए डब्ल्यू गान को अगर आपको पढ़ना है तो आपको डिटेल्स में तो जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है. अगर हम आगे जाके प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स भी उन्होंने उनके किताब टनल थ्रू द एयर में बता के रखे हैं, बट प्लैनेट्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स उनके ट्रेड्स को पता कर सको तो यस आपको वो प्लैनेट्स वो साइकिल्स जानना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो उन्होंने विस्तार में उनकी किताब में दे के रखे हैं. नंबर ऑफ डेज कितने हैं, या फिर प्लैनेट्स कौन से एसोसिएटेड है,
ये डिटेल्स उन्होंने दे के रखे हैं उनकी किताब टनल थ्रू द एयर में। हमको सिर्फ पहचानना है कि यस ये ट्रांजिट्स है, या फिर ये प्लैनेट्स है, या फिर ये जोडियक साइंस इसके साथ में एसोसिएटेड है। हाँ, वो डायरेक्टली उन्होंने दिया हुआ नहीं है, बट आपको अगर उनके ट्रेड्स पता रहेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। तो देखिए ये बिजनेस साइकिल यहाँ पे दी हुई है। ऑफ कोर्स इसका चार्ट वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। और यहाँ पे मूवमेंट्स कैसे होती है, नोड की मूवमेंट यहाँ पे उन्होंने ये एरो के थ्रू नोड ट्रेंड क्या है ये सबसे पहले दे के रखा है। और फिर से नॉर्मल टू अबव नॉर्मल, अबव नॉर्मल टू नॉर्मल, नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल, बिलो नॉर्मल टू नॉर्मल, ये ऐसे उन्होंने ट्रेंड्स दे के रखे हैं। और ऑफ कोर्स उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा भी है, तो हमारे लिए भी समझना वो आसान हो जाता है। चलो आगे डिटेल्स पे और जाते हैं। The real recovery began in January 1935 when the North Node moved out of Aquarius, the sign of the low point of the business cycle chart, a favorable secondary factor. Saturn sextile Uranus was also present during a 2 year period, and this sent stock market prices and business activity higher than they normally would have been. In August 1937, when the present recession set in, the North Node was in Sagittarius, and the normal position of the business volume curve was slightly below normal. At the same time, Saturn placed on the midheaven of the New York Stock Exchange chart indicated low prices for stocks and bonds. When this planet formed an unfavorable 45-degree angle to Uranus, stock market prices began to plummet. तो यहाँ पे उन्होंने बता दिए है कि सबसे पहले तो कौन सी साइंस इंपॉर्टेंट है। साइंस के अंदर अगर नॉर्थ नोड होती है तो वो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो दे दिया है। उसके साथ में उन्होंने जो सेकेंडरी एस्पेक्ट बनते हैं हमारे लिए, जैसे फेवरेबल सेकेंडरी फैक्टर्स है, ये जब भी बनते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है ये भी यहाँ पे बता दिया है। देखिए ये समझना जरूरी है, आपको अगर ये चीजें समझ गई तो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर में काम करना आसान हो जाएगा। बट वो इतने आसानी से टनल थ्रू द एयर में दिया नहीं है, वो आपको ढूंढना पड़ता है और फिर उसका रिलेशन निकालना है कि ये कैसे और कहाँ पे रिलेटेड है, क्योंकि उसके सिवा ये चीजें समझना जानना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। In April 1938, Saturn moved to a slightly favorable angle with Uranus. यानी पहले वो 45 पे था तो 45 से भी ये 30 डिग्री पे आ गया। And the North Node moved in Scorpio, the transit point on the business cycle chart, indicating that the technical normal point has been reached by the business curve. And with the slightly favorable secondary factor present, stocks should go up next year as Jupiter passes over the midheaven of the New York Stock Exchange chart, and business volume should rise towards the normal line during most of 1939. तो इस तरह से उन्होंने साइकिल जब भी बनी थी, फॉर एग्जांपल अगर हम 1929 से शुरुआत करते हैं, 1928 1929 से लेके 1939 तक ये जो पीरियड है ओवरऑल अगर आप चेक करोगे तो आपको डिटेल्स इसके बारे में पता करना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उन्होंने जो डिटेल्स बताया है वो दिसंबर 1929 से पता है, तो वो टाइम पे जब भी नॉर्थ नोड टोरस में था तो ये इम्पैक्ट आना शुरू हो गया था ऑफ कोर्स। और फिर उसके साथ में जब भी जुपिटर भी वो टाइम पे टोरस में था तो ये जो कंजक्शन हुआ था उसके हिसाब से एक पॉजिटिव फेवरेबल फैक्टर था। तो 1929 तक मार्केट पॉजिटिव था और उसके बाद में गिरना शुरू हुआ था। तो उसके जो फेजेस है ये भी यहाँ पे डिफाइन करके बताए हुए हैं। रिकवरी कभी शुरू हुआ था वो भी यहाँ पे बताया, फॉर एग्जांपल 19 फरवरी 1935 में जब भी नॉर्थ नोड मूव्ड आउट ऑफ एक्वेरियस, द साइन ऑन द लो पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल चार्ट।
तो ये यहाँ पे डिफाइन करके दे दिया और बता दिया है कि यस, नॉर्थ नोड जब भी एक्वेरियस में होता है तभी एक लो होता है. A favorable secondary factor, Saturn sextile Uranus, was also present during a 2 year period, and this sent stock market as business activity higher. तो ये जो सेकेंडरी फैक्टर्स है ये भी इम्पैक्ट करते हैं. हमको दोनों चीजें पता रहनी चाहिए. जोडियक साइन में जब भी नॉर्थ नोड का मूवमेंट होता है वो एक चीज हो गया, और उसके साथ में जो सेकेंडरी फैक्टर्स है वो भी उसका इम्पैक्ट हमको पता चलता है. तो इसमें हमको दो चीजें खास करके जाननी बहुत जरूरी है. एक तो सबसे पहले नॉर्थ नोड वो समय पे कौन से जोडियाक साइन से ट्रांजिट हो रहा है या फिर वो टाइम पीरियड में कहाँ पे है, ये एक पहली चीज है. और उसके साथ में साइमल्टेनियसली अगर कोई सेकेंडरी एस्पेक्ट्स वहां पे बनते हैं, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसे हमको समझ में आएंगे, ये भी खास करके हमको पता रहना है, क्योंकि ये फिर पॉजिटिव और नेगेटिव हमको दोनों उसी हिसाब से बताते हैं. देखिए, जब भी नॉर्थ नोड का ट्रांजिशन होता है तो वो एक समय के लिए, बड़े समय के लिए होता है, बट उसका जो छोटे समय के लिए इम्पैक्ट रहता है ये सेकेंडरी एस्पेक्ट्स जो बनते हैं उसके ऊपर निर्भर करते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमको एक फेवरेबल अनफेवरेबल इम्पैक्ट बना के देते हैं. तो सिंपल है. आपको अगर ये किताब चाहिए तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस वीडियोस में हमने कहीं ना कहीं उसका एक ऑथर के बारे में डिटेल्स बता के रखा है. तो ऑथर के बारे में हमने 2 या 3 ही वीडियोस बनाए हैं, तो आप वो चेक कर सकते हो. नॉर्थ नोड के बारे में आपको एक थोड़ा हिंट मिल जाएगा उसमें से. और कुछ नहीं, हमको आप कमेंट्स में डिटेल्स डालिए कि ये ऑथर है, इसके बारे में ये है, और हम आपके साथ में ये बुक शेयर करेंगे. ऑफ कोर्स हम यूट्यूब पे नहीं शेयर कर सकते हैं, तो टेलीग्राम पे एक मैसेज डाल देंगे तो भी काफ़ी हो जाएगा, और हम आपके साथ में ये शेयर करना शुरू कर देंगे. तो ये वीडियो में इतना ही था. हम और एक वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम और थोड़े डिटेल्स में जाएंगे और साइकिल्स चेक करेंगे. इंपॉर्टेंट, बिकॉज साइकिल समझना बेहद ज़रूरी है. आप अगर साइकिल समझना शुरू कर दो तो काम करना भी थोड़ा आसान हो जाता है. ओके, थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर.